الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں اور دھاندلیوں کے خلاف ایک فیکٹ بیسڈ فیصلہ دیا تھا، اور اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے۔ پشاور ہائی کورٹ پشاور کے پی کے صوبے کی وہ ہائی کورٹ ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کو وہ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ پارٹی صدر شہباز شریف نے کراچی میں خطاب میں کہا، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر حملے کے مترادف ہے۔ الیکشن کمیشن کا نشان سے متعلق فیصلہ حقائق پر مبنی تھا۔ ایسے فیصلوں سے طرفداری کی بو آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ترازو کو ایک طرف جھکایا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے وہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی ہے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا الیکشن میں ہم ایسے پلان لے کر آئے تاکہ جب حکومت بنے تو ہم پہلے دن سے ہی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس منصوبہ بندی ہو، تیاری ہو۔ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ ہم عام آدمی کا معیار زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، تعلیم اور صحت سمیت زندگی کی بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کی سکھر میں نیوز کانفرنس کہا، عوام ہمارے ساتھ ہے، الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے۔ ہم نے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے، موقع ملا تو ضرور پورا کریں گے۔ ہم انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم گرفتاری میں یقین نہیں رکھتے، اس کا ہم مذمت پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں، یہ پرانی سیاست کو دفن کر دیں، اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے، ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں، جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اتر آئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کی شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی مذمت، کہا، ہم انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، لیکن کیا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے اپنا موقف تبدیل کیا یا نہیں؟ جب فریال تالپور کو گرفتار کیا تو شاہ محمود قریشی نے کہا تھا آزاد اداروں نے گرفتار کیا ہے، مفاہمت کی سیاست کے لیے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کرنی پڑے گی۔ ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لیکن میں دعا گو ہوں۔ اگر چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا؟ عام انتخابات میں ہماری پارٹی بھرپور انداز میں حصہ لے گی۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں، انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے سازگار ماحول ناگزیر ہے۔ ملکی معیشت کی تباہی پی ٹی آئی کا ایجنڈا تھا، وہ لوگ انتشار اور بدامنی چاہتے تھے۔ اسرائیلی جارحیت کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے۔ سربراہ جمعیت علماء السلام مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس۔ چیئرمین پی ٹی آئی عدالتوں سے انصاف ملنے کے لیے پر امید میڈیا گفتگو میں بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا، انتخابی عمل کو داغدار کرنے پر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے۔ سخت حالات کے باوجود پی ٹی آئی امیدواروں نے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ نواز شریف سے بانی پی ٹی آئی کی نہیں، کسی اور کی بھی الیکشن نہیں لڑنے دے رہے۔ آئین کے مطابق بانی پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے نئے سال کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تقریب کے انعقاد پر مکمل پابندی ہوگی۔ اس موقع پر میں تمام پاکستانیوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور نئے سال کے آغاز پر سادگی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔
पाकिस्तान का एक बार फिर मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। निगरान वज़ीर आज़म का साल नौ की तक़रीबात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, गज़ा के लिए इमदाद की तीसरी खेप रवाना की जा रही है। दुआ है नए साल का सूरज अमन और सलामती का पैगाम लेकर तुलू हो। फ़लस्तीन में खूनरेज़ी रोकने के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। सिलेक्शन के लिए इलेक्शन को दुनिया कबूल नहीं करती। इलेक्शन का मतलब आवाम की राय को तस्लीम किया जाए। MQM के डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, वाशी इनकलाब से पहले फिक्री इनकलाब लाना होगा। हम अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके हैं। इनकलाब कभी खूनी नहीं होता। हमने जुल्म और जबर का रास्ता इख्तियार नहीं किया। MQM का तर्ज सियासत मुल्क में आएगा तो मुल्क कामयाब होगा। मुल्क बदतरीन सियासी और माशी बहरान का शिकार है। PTI पार्लियामेंटेरियंस मुल्क को बहरान से निकालेगी। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टर कहते हैं, हमारी जमात का मंशूर गरीब आवाम की तरक्की और खुशहाली है। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने आवाम को मायूस कर दिया। पाकिस्तान की नज़राती सरहदों की हिफाजत के लिए इंतखाबात में वोट बाज़मी और वतन से मोहब्बत करने वालों को दें। वो जमात जो बार बार इलेक्शन के लिए तड़प रही थी, अब जब इलेक्शन हो रहा है तो उनके जो चूहे बिलों में घुसे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि बाहर आए। अब इलेक्शन हो रहा है, मैदान में आए। एक जमात इलेक्शन के लिए तड़प रही थी लेकिन शेड्यूल का ऐलान होते ही गायब हो गई। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस अशक़ाबान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI चोर दरवाजे से इलेक्शन में आना चाहती है। अदालतों का सबसे बराबर सलूक होना चाहिए। 9 मई में मफरूर या नामजद मुलजिम पर कानून लागू होना चाहिए। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली के तीनों हलकों में 51 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई। दफ्तर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक 2 रोज़ में 123 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई। कागजात की मंजूरी अब मुस्तरद किए जाने के हवाले 30 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। लोधरा के 2 हलकों से जहांगीर तरीन के कागजात से नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। NA 155 और PP 227 में कागजात पर एतराज़ दाखिल नहीं करवाया गया। हमारे कागजात मुकम्मल हैं। मंजूरी के हवाले से रिटर्निंग अफसरान हतमी फैसला 30 दिसंबर को सुनाएंगे। NA 149 मुल्तान के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। वकील जहांगीर तरीन। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्श में शोधाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाज़िरी। जमहूरियत की बालादस्ती और मुल्क के माशी से काम के लिए दुआ। आसफा भुट्टो जरदारी और सनम भुट्टो भी भुट्टो ख़ानदान के मज़ारात पर हाज़िरी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत तमाम शोधा के ईसाल व सवाब के लिए कुरान ख़वानी और दुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोककर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क किए कि जिस तरह कार्रवाई हो रही है उस पर मुतमईन नहीं, इसे ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। सानहा 9 मई से मुतल्लिक़ 12 मुक़दमात में शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकली का हुक्म। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई को कारकुनान को भी पुरअमन रहने का दर्स दिया। तकरीर का रिकॉर्ड पैमरा के पास मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी का जज से मुकालमा। कहा, मुझ पर तशद्दुद किया गया। तिबी मुआयने की इजाज़त भी नहीं दी गई। अक़वाम आलम के रूबरू पाकिस्तान का मौका पेश करने वाली शख्सियत को मुजरिमों की तरह अदालत लाना अफसोसनाक है। मेहरबान कुरैशी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस अफसरान ने किसी को इमारत में दाखिले की भी इजाज़त नहीं दी। बानी PTI से इंतखाबी उमूर पर मुशावरत के लिए इजाज़त की इस्तदा। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। उम्मीदवारों की सिलेक्शन और टिकट्स की तकसीम का मसला दरपेश है। मुशावरत नागुज़ीर है।
फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों का मामला। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच पर एतराज़। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील देने की इस्तदा। 13 दिसंबर को 6 रुकनी लार्ज बेंच सिविलियन का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर चुका। सियासी वाबस्तगी का केस, इलेक्शन कमीशन का फवाद हसन फवाद को काम जारी रखने का हुक्म। दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। इसी केस में वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाया जा चुका। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, आरओ ने दलाइल की तकमील पर NA 127 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इरफान कादिर को आज जवाब जमा करवाने की हिदायत। स्टेट बैंक की ज़र मुबादला के ज़खायर के आदाद शुमार से मुतल्लिक़ हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। सरकारी ज़खायर में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 85 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा, मजमूई मालियत 7 अरब 75 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब 85 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 9 करोड़ डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद थे। निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास। EOBI के बजट की मंजूरी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022 के तहत तापी मंसूबे की मंजूरी मौखर। फैसले के तहत तापी मंसूबे में सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के साथ मसाइल के हल की मंजूरी दे दी गई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की सिफारिश पर मज़ीद 34 गिरफ्तार मुज़ाहिरीन को रिहा कर दिया गया। निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से कायम कमेटी मेंबरान फवाद हसन फवाद, मुर्तज़ा सोलंकी और जमाल शाह ने गवर्नर बलोचिस्तान के हमरा मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात किए थे। मुज़ाहिरीन ने गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा किया था। मुज़ाकरात के पहले रोज़ कमेटी ने गिरफ्तार ख़वातीन और बच्चों की फौरी रिहाई के अहकाम जारी किए थे। हमारी हुकूमत हुजाज कराम को सहूलियात देने के लिए कोशिश। हज का दौरानिया सिर्फ 22 रोज़ तक महदूद कर दिया गया। निगरां वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद का हज कुरानदासी की तकरीब से खिताब कहा, हर हाजी को QR कोड के साथ एक सूटकेस 7 GB का डाटा भी मुफ्त फराहम कर रहे हैं। इनकी सहूलत के लिए कराची को रोड टू मक्का में शामिल कर लिया गया। रेगुलर कोटा के मुताबिक 63,805 खुशनसीब आज़माइन हज के कुरानदासी मुकम्मल। कुरानदासी का ऐलान कर दिया गया। रह जाने वाले 5,633 दरख्वास्त गुजारों के रवानगी की शहरियों के लिहाज से वेटिंग लिस्ट मुरतब। हज दरख्वास्त मनसूख करने वालों की जगह रह जाने वाले अफराद को मुंतखब किया जाएगा। स्पॉन्सरशिप स्कीम 31 दिसंबर तक जारी रहेगी।